हाँ जी बेटा, हाल है ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ बेटा प्लस 1 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ भी बैंकों को पैसा लेना, बैंकों को पैसा देना, कोई चेक आना बैंक में जमा करवाना, बैंक में ये कहना भी साडे बिहाफ ते तू पेमेंट कर दे, बैंकों में ये कहना भी साडे बिहाफ ते तू पेमेंट ले ले। मतलब बैंकों नाल रिलेटेड ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਔਰ बैंकों ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पिछला लेक्चर जिन्होंने नहीं सुनिया अजे वो पिछला लेक्चर सुन लिया जो लिंक मैं आई बटन में ਤੁਹਾਨੂੰ दे देगा। ठीक है, ध्यान दियो। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 पर 13 ट्रांजैक्शंस निकालिए ने अलग-अलग तरह के ट्रांजैक्शन एक तकरीबन ऐसे तरह के ट्रांजैक्शन ही एक व्यापार करता है ऐसे तरह के ट्रांजैक्शंस भी ਤੁਹਾਨੂੰ रिकॉर्ड करने वास्ते एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आ सकते हैं। ध्यान दो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ B ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ एक बिजनेस का अकाउंट है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ प्राप्तकर्ता ਨੂੰ डेबिट ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰੁਪੀਜ਼ 10,000 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ट्रांजैक्शन नंबर 1 डेट ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਡੇਟ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਟੂ कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन की लिखते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो जी एक पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। देखो बैंक प्राप्त करता है इसलिए हम डेबिट किया कैश साडे कोल जा रहा है इसलिए हम क्रेडिट किया इसलिए पहली ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे कैश withdrawn from bank for 10,000 रुपए 10,000 रुपए ऐसे अमाउंट पालो 1 लाख रुपए डेबिट भी 1 लाख क्रेडिट भी 1 लाख डेबिट क्रेडिट बराबर सारी ट्रांजैक्शन सही। नेक्स्ट है बच्चे ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪत्ति ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਡੈਬਿਟ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪत्ति। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश साडे कोल आ रहा है तो टू ਕੀ ਹੋਏਗਾ बैंक क्योंकि बैंक है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ है टू बैंक अकाउंट कितना है 10,000 कितना है 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट मतलब कैश withdrawn from बैंक कैश withdrawn from बैंक। लो दूसरी ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट। हम तीसरी ट्रांजैक्शन देखो तीसरी ट्रांजैक्शन है कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000 फ्रॉम बैंक। लो ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ प्रोप्राइटर ने मालिक ने
ड्राइंग ये आएगा ड्राइंग मालक का नाम है जेड़ा किताबां विच नहीं आउंदा जे मालक पैसे निकालदा है तो ड्राइंग आउंदा है जे मालक पैसे लगांदा है तो कैपिटल आउंदा है ये तो मैं क्लियर कीती हुई है हुण इत्थे की ट्रांजैक्शन आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक को देने वाला कौन है बैंक ड्राइंग को डेबिट क्यों किया क्यों क्योंकि माल रमेश है रमेश को डेबिट होना सी पर रमेश मालक है मालक का नाम किताबां च नहीं होगा प्राप्तकर्ता कौन है रमेश प्राप्तकर्ता को डेबिट कर देना इसलिए उसे ड्राइंग को डेबिट किया क्लियर इस केस की ड्राइंग इन डेबिट किया ड्राइंग को डेबिट टू बैंक को कितना आ गया 5000 कितना आ गया 5000 रुपए हमने निकाले सी 5000 रुपए डेबिट 5000 रुपए क्रेडिट लिखना है बीइंग कैश withdrawn for personal use being cash withdrawn for personal use next देखो बच्चे पेमेंट टू राकेश बाय चेक रुपीस 2000 राकेश ਨੂੰ चेक राਹੀਂ पेमेंट कीती है 2000 रुपए कीती है तो देखो प्राप्तकर्ता कौन है राकेश देने वाला कौन है बैंक देने वाला कौन है बैंक की आएगी प्राप्तकर्ता ਨੂੰ डेबिट राकेश अकाउंट डेबिट टू की आएगा बैंक क्योंकि चेक राਹੀਂ पेमेंट दी है राकेश है जेड़ा है बैंक चों पैसे निकलवाएगा ते देने वाला कौन है बैंक साडे खाते में जो पैसे जाणगे बैंक है अकाउंट है बैंक में जो साडे खाते में जो पैसे निकल गए ता इसलिए की हो गया क्रेडिट हो गया राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक को कितने पैसे दिए राकेश को 2 कितने है 2000 डेबिट हो गया 2000 रुपया ही क्रेडिट हो गया पेमेंट made by check clear next है बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 5 की कहना है रेंट पेड बाय चेक लो जी रेंट देता है चेक नहीं देता है तब की होएगा रेंट साडा रेंट कितने में होता है साडा खर्चा है खर्चे कितने में होते हैं नॉमिनल अकाउंट तक की जुड़ा खर्चे ते हानि और डेबिट लाभ ते आमदन क्रेडिट ये साडा खर्चा है इसलिए की हो गया रेंट को की करना ਅਸੀਂ डेबिट करना है रेंट अकाउंट डेबिट होएगा तो 2 की आएगा बैंक अकाउंट जो के देने वाला कौन है गिवर कौन है टू बैंक कौन है बैंक टू बैंक को कितने पैसे देते हैं रेंट कितना देता है 15 कितना 15 नेक्स्ट है स्टूडेंट्स देखो पेड रेंट बाय चेक लो रिलेशन हो गया लाइन होगी साडी ट्रांजैक्शन होगी 6 का बेटा बैंक चार्जेस रुपीस 200 बैंक ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਨੇ बैंक ਦੇ ਚਾਰजेस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बैंक ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰजेस ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बैंक ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਕੀ ਚਾਰजेस ਖਰਚੇ ਕੀ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਨੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਖਰਚੇ ਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बैंक ਚਾਰजेस अकाउंट की हो जाएगा डेबिट हो जाएगा ये 2 की हो जाएगा बैंक अकाउंट क्यों क्योंकि साडे खाते में जो भी पैसे निकाले ने ते देने वाला कौन है एक साडे खाते में जो ले ने इनका मतलब देने वाला कौन है बैंक ते देने वाले को की करते ने क्रेडिट करते हैं ठीक है 2 की आएगा बैंक कितना आएगा कितना खर्चा साडा 200 कितना है 200 बैंक चार्जेस लो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 7 सभी ट्रांजैक्शन में देखो ध्यान दो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन द सेम डे बच्चे ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ कई बार की ਹੁੰਦਾ है चेक रिसीव करके आपके कोल रख लिया तो 5 दिनों बाद 10 दिनों बाद जमा करवाया उन दोनों की अलग-अलग ट्रीटमेंट होती है ठीक है पहले अगर आप इस बात का करते हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम राहुल को चेक लिया तो उससे दिन ही आप बैंक के ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ जमा करा देता
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ डेबिट होएगा तो टू की होएगा राहु, देने वाला कौन है राहु। दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक प्राप्त करता हो गया, राहु देने वाला हो गया, बैंक डेबिट करता, राहु क्रेडिट करता। कितने पेमेंट कितना 5000, कितने पेमेंट कितना 5000, 5000 डेबिट या 5000 क्रेडिट लिखना की नरेशन की कितना बच्चे चेक राहु चेक deposited into bank। जिन्हें तो गल क्लीन हो गए वो थोड़ी नरेशन लिखना होगा तो गल क्लीन। लो जी ए 7 ट्रांजैक्शन हो गया, ਹੁਣ 8ਵੀं ट्रांजैक्शन ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 98 726 111 ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 में तो बच्चे ध्यान दो, ऑफिस बना रहे हैं लो नेक्स्ट बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 8। 8वां ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नकुल एंड रुपीस 1800। कितने का चेक मिला नकुल को 1800 रुपए एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ते बैंक को डिपॉजिट है जेड़ा नहीं किया गया। हुन चेक मिलिया तो आप फिर वो साडे को कोई चीज आ रही है, की आ रही है चेक, तो की आप लिख देना 8वीं ट्रांजैक्शन विच चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक सानू प्राप्त हो गया, चेक साडे हाथ में है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ते 2 की आएगा नकल, देने वाला कौन है नकल। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम नकल। ठीक है, अगली तरफ कितने रिसीव बच्चे देखो ध्यान दो 1800 कितने जी 1800। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹੀ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਚੈਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਨਕਲ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੈਕ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ। नेक्स्ट 9th ट्रांजैक्शन की है बच्चे राहुल चेक डिसऑनर। लो जी राहुल का चेक डिसऑनर हो गया, राहुल का चेक केड़ा सी आ पढ़ लेता है। लो जी डिसऑनर की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डिसऑनर ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਚੈੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਚੈੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ डिसऑनर हो जाना। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ डिसऑनर ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਡੈਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਡੈਟਰ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੈਟਰ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। राहुल की बन गया साडा देनदार बन गया, तो ये क्या आएगा राहुल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा बैंक, 2 क्या आएगा बैंक। लो राहुल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट बीइंग राहुल चेक डिसऑनर। राहुल का चेक की हो गया साडे को डिसऑनर हो चुकी है। राहुल का चेक जब डिसऑनर होया तो राहुल साडा दोबारा डेबिट बन गया, इसलिए राहुल की काम है दोबारा को डेबिट कर चुके हैं। लो जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 10 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक रुपीस 500। लो जी इंटरेस्ट चार्ज की गई है बैंक द्वारा, चार्ज की मतलब लेनी, इंटरेस्ट
ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੇਗਾ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या टू की होएगा बैंक। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक को क्यों? क्योंकि सारे खर्चे ते हानियां डेबिट करते हैं ते बैंक को ने बैंक में जो पैसे जा रहे हैं साडे खाते में जो पैसे जा रहे हैं साडा खाता देने वाला है। साडा खाता देने वाला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ बैंक टू ਹੋਏਗਾ बैंक being interest paid। इन्हें का पैसे कितने देखो बच्चे 500 कितना है 500 रुपये डेबिट और 500 रुपये ही क्रेडिट। आज मैं राहुल का चेक से डिसऑर्डर आया सी अमाउंट नहीं लिखी सी। राहुल का चेक कितना है 5000 रुपए का। ये 5000 रुपए ना दोबारा तो साडा की बन गया सी डेबिट ना। नेक्स्ट है बच्चे 11 नंबर च आ गया बेटा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक रुपीस 700। अलाउड बाय द बैंक अलाउ की मतलब सानू इंटरेस्ट मिली। जे इंटरेस्ट मिली साडी की होगी आमदन ते सारियां आमदनां नॉमिनल अकाउंट विच क्रेडिट करदे हां। इहदा मतलब इंटरेस्ट अलाउड जेडी है वो साडे कोल साडी है वो आमदन होएगी। सॉरी बैंक ने अलाउ कीता है वो साडी आमदन होएगी, सानू रिसीव होएगी। सानू की होएगी रिसीव होएगी। जब रिसीव होएगी तो बैंक के खाते में जमा होगी, बैंक के खाते में जमा होगी है। इसलिए बैंक साडा खाता प्राप्त करता है, इसलिए बैंक प्राप्त करता है। इसलिए इंटरेस्ट की होएगी तो बैंक की होएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या टू की होएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितने इंटरेस्ट मिली है सानू 700 रुपए। सानू कितनी इंटरेस्ट मिली है 700। दोबारा देख लो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउ करना मतलब है इंटरेस्ट देना। बैंक ने इंटरेस्ट देती है साडे खाते में जमा हुई है, साडा खाता प्राप्त करता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया ते इंटरेस्ट साडे वास्ते आमदन है, इसलिए आमदन जेडी वो क्रेडिट आमदन की होगी क्रेडिट। इनका नरेशन बच्चे तुसी लिख लेना है इंटरेस्ट रिसीव बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट है बच्चे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम जेड़ा वो दिता है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ जाएगी। हाँ साढ़े खाते में जाएगी, ऐसा मतलब बैंक में जाएगी। जब बैंक में जाएगी तब बैंक देने वाला होएगा तो बैंक का हमेशा क्रेडिट होएगा। ठीक है ना। नंबर 2 जब पेमेंट की है बैंक देने वाला होएगा तो बैंक क्रेडिट होएगा तो डेबिट भी होएगा। देखो क्लियर है हमने ध्यान दो। इंश्योरेंस प्रीमियम देता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम साढ़े वास्ते की हो गया खर्चा हो गया तो एंट्री कहेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होएगा तो टू की होएगा बैंक को, क्योंकि बैंक में जो पैसे जा रहे हैं सारे खाते में जो पैसे जा रहे हैं। तो कितने पैसे ने बच्चे ध्यान दो 800 कितना है 800 रुपये डेबिट 800 रुपये क्रेडिट। सेम देना है नरेशन में लिख लेना बच्चे उसी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ओके नेक्स्ट है बच्चे नेक्स्ट सिक्वेंस बैंक रिसीव्ड डिविडेंड द लाभांश। डिविडेंड कितने हैं लाभांश। बैंक रिसीव्ड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ₹200।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਬਿਟ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਬੈਂਕ अकाउंट डेबिट तो टू की होएगा, टू है डिविडेंड रिसीव, टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट कितने से पहले है 200 रुपए डेबिट है तो 200 रुपया दिया सी 200 रुपये ही क्रेडिट, ठीक है। ओके बच्चे, लो ये सारे तकरीबन बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से जिन्हें मैं क्लियर कराना चाहता सी भी बैंक नाल रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस तकरीबन होनी है, ठीक है ना। बैंक की ट्रांजैक्शंस तो सारी क्लियर हो चुकी है, एक दा लेक्चर अपना बहुत जल्द से बनेगा, उस तो बाद एक दो लेक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ कंप्लीट क्वेश्चन ਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ बैंकिंग लाइन ਵਿੱਚ बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हरेक गल क्लियर हो चुकी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना ताकि सानू मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चा। थैंक यू।